حوالہ نکالیں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 65واں باب۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 65واں باب 65 باب ہے۔ اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ 13ویں اور 14ویں آیت یسایہ کی کتاب اس کا 65واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ میری گزارش ہے بہن ثانیہ سے کہ وہ آئے اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ اسی میں آپ سب کو سلام۔ آج کی پاک تلاوت یسایہ 65 باب 13ویں 14ویں آیت۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے، اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دل گیری کے سبب سے نالان ہوگے اور چھان کھاری سے ولولات کرو گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ اے میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ بیٹا وہ دوبارہ کی کتاب میں اپنا دائنا بازو اٹھا کر ہم خدا کے حضور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا عظیم باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پنطوس پیلاطس کے ہاتھوں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، آدمی بعد میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا کا عظیم باپ کے دائنے بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر پاکیزہ کلیسیا پر، مقدس اشارت، گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور اپنی زندگی پر آمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا کرنا چاہیے۔ خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو آج صبح میری طرف سے سلام۔ خدا ان کی انتہائی شکر گزاری ہے کہ آج ایک خوبصورت دن جو اس نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، ہم اس کے گھر میں آ کر ہم نے اس کی پرستش اور اس کے نام کو مبارک کہا ہے۔ اور دنیا میں جو کوئی بھی کسی بھی معبود کو مانتا ہے وہ اپنے خدا کو ضرور یاد کرتا ہے، کیونکہ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری وابستگیاں، ہمارا زندگی کا ہر نصف و لائن مذہبی طور سے جڑا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان، کوئی بشر یا کوئی بھی انسان ہے جو عبادت نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایک دن جو مقرر ہے اس میں عبادت نہیں گزرانتا خدا کے حضور، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے اس نے ہمیں ایک دن مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہیلو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اگر کسی بچے کو میں نے چلتے پھرتے دیکھ لیا تو اس کو میں ادھر سامنے کھڑا کروں گا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ تو آج کا ایک چھوٹا سا ورد، 2 آیتیں جو آج ہم نے یسایہ نبی کی کتاب میں سے آج ہم نے تلاوت کیا۔ یسایہ نبی انبیاء اکبر میں سے پہلا نبی ہے۔ میں نے انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے۔ انبیاء اکبر میں سے یہ پہلا نبی ہے
जिसने खुदावंद यीशु मसीह के आने की बेशुमार पेशनगोइयां की है। और इस नबी के दो बेटे पैदा हुए, शायशूब और एक महीर शलाल, जो नबूती तौर पर पैदा हुए थे। खुदा ने उसे दो बेटे दिए और वो नबूती तौर पर थे। बेटा इसकी आवाज से करो। तो यहां पर आखिरी अबवाब में यशायाह एक बात पर लोगों को मुखातिब है खुदा की तरफ से। वो कहता है कि 12वीं और हमने 13वीं और 14वीं आयत पढ़ी है, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे। कौन खाएंगे? मेरे बंदे खाएंगे। पर तुम क्या होगे? भूखे रहोगे। पर तुम क्या होगे? यशायाह नबी की अगर इब्तिदाई आयतों को पढ़े तो वहां पर वो अपने लोगों से इस तरह से मुखातिब है, वो लोगों का नाम ही नहीं ले रहा। कह रहा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि सुन आसमान और कान लगा जमीन, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। लोग खुदा से इतने दूर हो चुके थे कि खुदा लोगों से मुखातिब नहीं है। खुदा अपनी कौम से, खुदा अपने लोगों से कोई इस काबिल नहीं था कि वो किसी से मुखातिब होकर बात कर सकता। वो कहता है कि लोगों में तो ऐसा कोई बंदा मुझे नजर नहीं आता कि जिसके सामने मैं शिकायत करूं, जिसके सामने मैं ये कहूं। बल्कि वो कहता है कि आसमान और जमीन तो सुन ले, मैंने इनको पाला और पोसा है, मैंने इनको जवान किया, मैंने इनकी खबरगिरी की, मैंने बियाबान में इनको मत कहलाया, मैंने दुश्मनों से इनको छुड़ाया, मैं इनके लिए ढाल बना रहा। पर मैं इनके लिए क्या कुछ करता रहा। मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे क्या किया है? सरकशी की है। क्या की है? मेरे अजीजों, सरकशी उस अमल का नाम है कि हम खुदा को जानते हुए किसी और तरफ चले जाए। यानी मुझे पता है कि ये रास्ता यहां पर है, जिंदगी का राह, हमेशा की जिंदगी का राह, इत्मीनान का राह ये है, पर मैं जानता हुआ अगर इस रास्ते पर चला जाऊं तो मैंने अपने मानने वाले के साथ सरकशी की है। क्या की है? यानी मैं उसके मुखालिफ खड़ा हूं। तो मेरे अजीजों, यहां पर आखिरी अबवाब में जाकर खुदा अपने लोगों से मुखातिब है और वो क्या कह रहा है कि मेरे लोग खाएंगे और तुम भूखे रहोगे। मेरे लोग क्या करेंगे? पर तुम क्या रहोगे? भूखे रहोगे। ये कौन से लोग हैं? सुनिएगा, 11वीं आयत से पढ़ता हूं। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और जहरा के लिए शराब मजाज का जाम पर पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून और अनवान है वो है मसीही लोग खुशबाश है। क्या है? मसीही लोग क्या है? अब अपने गिरेबान में हम थोड़ी देर के लिए झांकेंगे कि क्या हम मसीही हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है कि जो लोग मेरे हैं, जो लोग क्या हैं? मेरे हैं, वो क्या रहेंगे? वो क्या करेंगे? खाएंगे। पर तुम क्या रहोगे? भूखे रहोगे। और आगे क्या लिखा है? लिखा है मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम क्या रहोगे? शर्मिंदा रहोगे। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनवान और हमारा मजमून है वो है मसीही लोग क्या है? खुशबाश है। मसीही लोग क्या है? वो क्यों खुशबाश है? इस बात का इल्म होना चाहिए हमारे पास। हम क्यों खुश हैं? हम क्यों खुश हैं कि खुदा के घर में हम आ गए, हम उसकी
बड़ी खुशी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 16वीं आयत, जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। जब तुम मांगोगे मैं क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। आप अपने वालिदैन के साथ वाबस्ता है। हम अपने वालिदैन के साथ, जो बच्चे वालिदैन के साथ वाबस्ता है, अगर कोई उनसे, अगर अपने वालिदैन से कुछ मांगे और वालिद उसी वक्त उसे पैसे दे, उसी वक्त उसे गाड़ी ला कर दे, उसी वक्त उसे तमाम उसकी जरूरियात पूरी करे, आप मुझे बताएं, हम बच्चे वाले हैं, कितने बच्चे खुश होते हैं? आप मुझे बताएं, बच्चों की खुशी का इंतहा होता है? नहीं। यहां पर खुदा के लोग इसलिए खुश हैं, मसीह लोग इसलिए खुश हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर हवाला निकाल दिया तो पढ़िएगा बेटा, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 16वीं आयत, अगर किसी ने निकाला तो पढ़िएगा। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हम किस लिए खुश हैं भाई? आप मुझे बताएं। हम इसलिए खुश हैं कि हम अपने बाप से जो कुछ मांगते हैं वो हमें क्या करता है? हम इसलिए खुश हैं। हमारा बाप हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, हमारा खुदा कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि गैर अक़वाम के सामने हम खुश हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे मांगने पर हमें सब कुछ दे देता है। हमारे मांगने पर क्या देता है? हमें सब कुछ दे देता है। मेरे अज़ीज़ों, हम इसलिए खुश हैं कि हमारा खुदा हमें क्या करता है? सब कुछ दे देता है। एक और हवाला मेरे लिए पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़िएगा। खुदावंद यीशु मसीह उनकी तमाम खुशियों को क्या करता है? पूरा करता है। जी, अगर किसी ने अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हमारी खुशी क्या हो जाएगी? हमारी खुशी क्या हो जाएगी? आप मेरे अजीजों, हम सब लोग मसीह में अगर हैं तो हमारी खुशी पूरी है। हमारी खुशी क्या है? पूरी है। आज बहुत सारी जिंदगियां नाखुश जिंदगी गुजारती हैं। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेचैनी से गुजार रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारूं कि मैं खुश हो जाऊं। आपकी खुशी कभी भी यीशु के बगैर पूरी नहीं हो सकती। सब बोले हालेलुया। आपकी जिंदगी कभी भी यीशु के बगैर पूरी नहीं हो सकती। मसीह लोग, मसीह चाल चलन, मसीह जिंदगी गुजारने वाले लोग, इसलिए उनकी खुशी पूरी है क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु मौजूद है। उनकी जिंदगी में क्या है? यीशु मौजूद है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि ना कि हमें सब कुछ मिल जाता है, बल्कि इसलिए भी खुश होना चाहिए कि हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। सब बोले हालेलुया। यूहन्ना की इंजील और उसका, लूका की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत को जब आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा नाम क्या है? किताबे हयात में लिखा हुआ है। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में क्या लिखा है? लिखा हुआ है। तुम्हारा नाम कहां पर लिखा है? आसमान पर लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? आसमान पर लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा नाम किसी जमीन पर लिखा हुआ नहीं है। कोई जमीन पर कोई किताब ऐसी नहीं है साडा नाम बाइबल चो किधरों आ जाए ना, जिन्हें माँ प्यो ने रखा होंगे तो बाइबल पढ़ते पढ़ते साडा नाम आ जाए तो किन्हें होगा बाइबल चो मेरा नाम निकला है। हम कितने खुश हो जाते हैं। वो बाइबल मुकद्दस में नाम है, ये खुदा की आवाज है। तो जहां पर हमें नजात मिलेगी, आसमान पर खुदा के सामने जो किताब है वहां पर अगर हमारा नाम लिखा हुआ
तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है? जो लोग बड़े बड़े कारनामा करते हैं, बड़े बड़े लोग नामवर हो जाते हैं और कहते हैं जी फलाने बंदे का नाम जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड च लिखे है। कितने लिखे है? वर्ल्ड रिकॉर्ड च लिखे है। और उसका म्यार, उसका रुतबा, उसका ओहदा आम लोगों से ऊंचा होता है, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसके साथ अदब एहतराम से बात की जाती है। कहा जाता है कि भाई ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड च लिखे है। और आपका नाम सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊंची जगह पर, यहां पर आसमान पर। कहां पर लिखा हुआ है? आसमान पर लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरी बहनों, हम खुश हैं क्योंकि हमारा नाम कहां पर लिखा हुआ है? आसमान पर लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुशी की खसूसियात, खुशी की क्या है? खसूसियात है। खुशी आपके अंदर ताकत पैदा कर देती है। क्या पैदा कर देती है? आप परेशान हैं और इब्लीस हमेशा आपको परेशान देखना चाहता है। इब्लीस हमेशा मसीह लोगों को परेशान करता है, मेंटली तौर पर, समाजी तौर पर, खानदानी तौर पर, हर लिहाज से इब्लीस मसीहियों को परेशान करना चाहता है। वो खुदा के लोगों को परेशान करना चाहता है। तो अगर मसीही खुश रहे तो ये हमारे लिए ताकत है। ये हमारी क्या है? ताकत है। मेरे अजीजों, अगर हम खुश रहेंगे तो इब्लीस हमेशा शर्मिंदा रहेगा। अगर हम ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है लेकिन हमारा तवक्कुल खुदा पर है, हमारा भरोसा मसीह पर है, तो हम कभी भी परेशान नहीं रह सकते। फिर हमारे चेहरे पर स्माइल रहेगी क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? आप बोलेगा, हमारा भरोसा किस पर है? खुदा पर। यीशु ने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो। अपनी सारी फिक्रें क्या करो? मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो जो लोग उस पर फिक्र रखते हैं, जो अपनी फिक्रें उसको दे देते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते, वो कभी भी उलझनों में नहीं पड़ते क्योंकि उसको पता है कि मेरी फिक्र करने वाला आसमान पर मौजूद है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीही खुशबाश है। मसीही क्या है? खुशबाश है क्योंकि उनका भरोसा, उनका तवक्कुल खुदा पर है। मसीह खुशबाश इसलिए है क्योंकि खुदा हम मांगते हैं और हमारा खुदा हमें देता है। मसीह इसलिए खुशबाश है क्योंकि उनका नाम किताब हयात में क्या है? लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, हमें खुश रहना चाहिए। हम अगर गम में भी हैं तो उस पर भरोसा रखें, आपका गम मिनटों में चला जाएगा। और आप जब खुदा पर भरोसा रखते हैं फिर आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दें। बहुत शुक्रिया खुदावंद, आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आए मेरे अजीजों, हम अपने सुर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। सब खुदावंद के हुजूर चुप जाए और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। बहनों में से जिससे भी खुदावंद का रूप आता है वो दुआ करने में हमारी बहनों बनती है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। कदूस कदूस अजीम मशीर खुदा कादिर अब्दियत के बाद शांति के शहजादे बहरोबर के खालिक और मालिक असली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। क्या दिल से और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि तूने गुजरे दिनों में हमारी मदद, हमारी रहनुमाई की। आज का बाप सबका दिन हमारी जिंदगी में काम दिया। ऐ बाप, तेरी प्रस्तुत में आपने हमारी हिफाजत और निगहबानी की। ऐ बाप खुदा, आज के जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज की मीठी आवाज़ को हम तक ऐ बाप पहुँचाया। ऐ बाप खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि तू जो हमसे हम कलाम हुआ। ऐ बाप, जब आपका कलाम नाज़िल होता है तो बेतसीर नहीं लौटता बल्कि जलाली काम करता है, जो बंद और टूटे गुदे में से गुजर जाता है। ऐ बाप खुदा, तेरे इस ऐ बाप ताए हुए कलाम के लिए तेरा शुक्र